हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम स्टडी कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री सेकंड। ट्रिगोनोमेट्री सेकंड में हमने फर्स्ट स्टडी किया है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, सिमिलरली tan ऑफ ए प्लस बी tan ए माइनस बी. After that, using the compound angle to find out to study the multiple angle formula, means 2 thetas and 3 thetas formula. After that, also study the half angle formula, means theta by 2 formula. चलो रिवाइज करो वन बाय वन. साइन 2 थीटा या साइन ऑफ 2x 2 sin x cos x, and in secondary 2 tan x upon 1 plus tan square x, means sin 2x 2 formula, sin 2 thetas 2 formula. Similarly cos 2 thetas 4 formula. First one cos square theta minus sin square theta, second 2 cos square theta minus 1, third 1 minus 2 sin square theta, and fourth one 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. These are the formula of cos of 2 theta. Next one tan of 2 theta. Tan 2 theta equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Using the cos 2 thetas only conversion simplification, 1 plus cos 2 theta is a 2 cos square theta. 1 minus cos 2 theta equal to 2 sin square theta. These are the formula of 2 theta. Similarly 3 thetas formula. Sin of 3 theta equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Cos 3 theta equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Tan of 3 theta equal to 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. यह है tan of 3 theta. Here study the formula of 2 theta and 3 theta. Using the formula of 2 theta to write या to study the formula of theta by 2, means it is called as half angle. चलो वन बाय वन हाफ एंगल फॉर्मूले. फर्स्ट वन साइन थीटा. साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. सेकंड वन 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2. कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. सेकंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. थर्ड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड फोर्थ वन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2. cos theta equal to tan theta equal to 2 tan theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2. 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2. 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2. These are the formula of multiple and half angle, but all depends on the compound angle, means the first important है compound angle formula. Okay, कंपाउंड के बाद आ गया मल्टीपल एंगल एंड हाफ एंगल, बट बेस उसका कंपाउंड एंगल है. विद प्रूफ हमने वो स्टडी किए हैं. अभी ये परमानेंट मेमोरी में सेव करना है. यू आपको ये फॉर्मूले सब आना चाहिए. बार बार रिवाइज करो. पेज पे 2 बार 3 टाइम्स 4 टाइम्स लिख के देखो, तुरंत लर्न हो जाएंगे. आपने सोचा तो 15 मिनट्स मैक्सिमम वो टाइम में ये लर्न हो जाते हैं. तो जिसका हुआ नहीं है वो अभी भी चांस है जल्दी से जल्दी ये सब लर्न करना है. ओके, चलो कम टू द पॉइंट टू स्टडी द नेक्स्ट एग्जांपल. फाइंड आउट साइन ऑफ 2x cos 2x and tan 2x if we have given the value of sec x is the minus 13/5. sec x given है, and next one pi by 2 less than x less than pi, means angle x lies in which quadrant? Pi by 2 less than x less than pi, means pi by 2 से greater and pi से less. चलो write in your chat box. x lies in which quadrant? ये कौन से quadrant में? That is more important here. Here limitation of quadrant. Why important? Use of that limitation to change या to check the sign of sin and cos.
या टू चेंज द साइन ऑफ साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन. Depends on quadrant. We know that first quadrant all positive, second quadrant sin positive, cos negative, third quadrant sin cos negative, tan positive, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव. वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है. लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. ये सेकंड क्वाड्रेंट में है. हमें गिवन है sec x. वी हैव गिवन sec x. सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, दैट्स व्हाई sec आल्सो नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन है. ये माइनस क्यों है? पाई बाय 2 लेस देन x लेस देन पाई. ये रीजन आएगा. But we know that sec means 1 upon cos x minus 13 by 5. Why convert this? If given is a primary, then remaining find out. Very simple. Why remaining? All depends on this primary. ये 1 upon cos equal to this, then the cos x use the invertendo. Invertendo मतलब interchange numerator denominator. माइनस 13 बाय 5 इंटरचेंज 5 बाय माइनस 13 या माइनस 5 बाय 13. ये वैल्यू आ गया cos x का. दिस इज द वैल्यू ऑफ cos x. ये cos x का वैल्यू मिला मुझे माइनस 5 बाय 13. बाय यूजिंग sec x फाइंड आउट द cos x. cos नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में करेक्ट है. अभी मैं फाइंड करता हूं sin x. मुझे रिक्वायर्ड है sin x. Now we know the relation between the sin and cos. What is the relation? Sin square x plus cos square x is equal to 1. Therefore sin square x equal to 1 minus cos square x. 1 minus cos x का ये वैल्यू है माइनस 5 बाय 13 का स्क्वायर. ऐसे होगा 1 minus 25 by 169. Its simplification 169 minus 25 divided by 169 equal to 144 by 169. This is the value of sin square x. ये sin square x का वैल्यू है. ये सब्ट्रैक्शन करके आ गया. इतना तो आप लोगों को आता ही है. नेक्स्ट वन, using these to taking the square root on both side and write the value of sin x. Sin x equal to क्या आएगा? प्लस माइनस 12 बाय 13 टेकिंग स्क्वायर रूट. मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, बट टेक द प्रॉपर साइन. sin x इक्वल टू माइनस 12 बाय 13, सॉरी प्लस 12 बाय 13. माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 लेस देन x लेस देन पाई. सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है. वैल्यू ऑफ साइन x इज द 12 बाय 13. ये साइन x का वैल्यू आया 12 बाय 13. cos x का वैल्यू है माइनस 5 बाय 13. क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है. अभी 1 बाय 1 फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है. फर्स्ट वन, साइन ऑफ 2x. वी नो द फॉर्मूला ऑफ साइन 2x. What is the formula of sin 2x? Sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x. This is the formula of sin of 2x. Equal to 2 multiply sin x 12 by 13 into cos x. Cos x का वैल्यू माइनस 5 by 13. करो सिंप्लीफिकेशन. कहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है? ये 12 5 जार 62 जार 120 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 13 13 जार 169. ये साइन 2x का वैल्यू आया. वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2x इज द माइनस 120 बाय 169. 2 साइन x इंटू कॉस x. ये 2 न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का ये प्रोडक्ट, ये न्यूमरेटर का प्रोडक्ट. ये वैल्यू आया साइन ऑफ 2x का. अभी नेक्स्ट वन हमें फाइंड करना है कॉस ऑफ 2x. सेक नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टर्म टू फाइंड आउट द कॉस ऑफ 2x. कॉस 2x का फॉर्मूला कोई भी यूज करो. कॉस 2x के पहले तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज किया तो भी चलेगा. कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये भी करेक्ट है. 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 ये भी करेक्ट है. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये भी करेक्ट है. और सबकी वैल्यू हमारे पास है.
इसमें से कोई भी यूज करो, आंसर ऑलवेज सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन यूज द फर्स्ट वन, cos 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इससे आएगा, राइट है। तो पुट द वैल्यू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos x का ये वैल्यू है -5/13 ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस साइन का वैल्यू है 12/13 ब्रैकेट स्क्वायर, ये टाइप में आएगा। ये माइनस का स्क्वायर सिंप्लीफाई करो, ये 25/169 माइनस 144/169, देखो राइट है क्या, 25 माइनस 144 डिवाइड बाय 169, करो सब्ट्रैक्शन, ये हो जाएगा -19/169। ये cos 2x का वैल्यू आ गया, वैल्यू ऑफ cos ऑफ 2x हमें मिला -19/169, इसे आ गया cos 2x। अभी मुझे फाइंड करना है tan ऑफ 2x। थर्ड वन, फाइंड आउट द tan ऑफ 2x। tan 2x का फॉर्मूला नहीं किया तो हम प्राइमरी में ऐसे लिख सकते हैं, tan 2x इज sin 2x अपॉन cos 2x, डायरेक्टली आएगा। ये दोनों का डिवाइडेशन sin अपॉन cos इज अ tan, ये 2x है तो वह भी 2x लिया, और ये sin 2x cos 2x का वैल्यू है अपने पास, sin 2x का वैल्यू है -120/169, cos 2x का वैल्यू है -19/169, ये अपॉन अपॉन कैंसल है, माइनस माइनस कैंसल है, फाइनल आंसर आ रहा है 120/19। tan ऑफ 2x का हमें वैल्यू मिल गया 120/19, ये है वैल्यू ऑफ tan 2x मिला। उसके पहले हमने फाइंड किया cos 2x, उसके पहले हमने फाइंड किया sin 2x, बट sin 2x के लिए हमें चाहिए था sin एंड cos, गिवन था sec से फाइंड किया मैंने cos से फाइंड किया मैंने sin, और ये होने के बाद sin 2x, बट sin 2x का वैल्यू लिखने के लिए उसका फॉर्मूला पता चाहिए, 2 sin x cos x, cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। नेक्स्ट वन tan 2x मतलब sin 2x अपॉन cos 2x, ये मेथड से मैंने ये sin 2x cos 2x tan 2x फाइंड आउट किया। क्लियर हुआ सब लोगों का? सब लोगों को अच्छे से समझ में आया? चलो वेरी गुड। अभी ये जो मैंने फाइंड आउट किया sin 2x cos 2x tan 2x, ये मैंने बाय पैटर्न फाइंड किया। अभी अलग वे से, लॉजिकल वे से कैसे फाइंड करते हैं वह भी मैं शॉर्टकट में यहां पर ही बता देता हूं। Any trigonometric function, first one right angle is the must. This angle, right angle triangle is a must. This angle is x. ये x angle लिया। We have given sec. Definition of sec, hypotenuse upon adjacent. ये sec का definition होता है मतलब hypotenuse upon adjacent. Use Pythagoras and to find out the third side, that is the 12. कहानी समझ में आया? ये जो गिवन है, ये गिवन से मैंने डायग्राम में प्रेजेंट किया। सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। वी नो द टू साइड बाय यूजिंग द पाइथागोरस, फाइंड आउट द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, वो मैंने फाइंड किया। करेक्ट है। अभी मेरा पहला क्वेश्चन है साइन ऑफ 2x, उसका फॉर्मूला है 2 sin x cos x। सेकंड फॉर्मूला भी अवेलेबल है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, आप ये भी यूज कर सकते हैं। चलो मैं बता देता हूं, यहां पर ही रफ वर्क कर रहा हूं। sin 2x इक्वल टू 2 tan x, मैं सेकंड मेथड दिखा रहा हूं। 2 tan x, tan मतलब क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ tan, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 12/5 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, 12/5 का स्क्वायर 144/25। इसे सॉल्व करो, आपको यही आंसर आएगा। आपको यही मेथड से सॉल्व करना है, बट डायग्राम से 2 इंटू साइन एक्स, साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 12/13 इंटू कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस 5/13। बट रिमेंबर, इफ यूज द शॉर्टकट, देन here use the condition of the given. Here we have given x lies in second quadrant,
सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव मीन्स ये नेगेटिव चाहिए, जो यहाँ पे लिखा वही तो लिखा मैंने, अलग कुछ नहीं है, बट ये बाय रूल फाइंड आउट किया है और ये जो है वो मैंने टेक्निकली फाइंड किया है। टेक्निकली हम एंट्रांस के लिए यूज करते हैं और ये बोर्ड के लिए हमें बाय रूल यूज करना है, बट हमें एंट्रांस के लिए भी पता चाहिए कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, ये डायग्राम ड्रॉ करके हम कर सकते हैं। समझ में आया सब लोगों को? ये ऐसे हमने ये सॉल्व किया। कोई भी सम रहा हमें दोनों वे से पता चाहिए, sin 2x cos 2x, नेक्स्ट फाइंड किया हमने tan 2x। ये शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, बट हमें बोर्ड में लिखना है तो ऐसे बाय रूल मैंने बताया। चलो और एक सम लेते हैं हम अलग से, चलो बाद में लेते हैं, अभी अगला स्लाइड देखते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग, हमें प्रूव करना है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख रहा हूं पहले LHS 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये LHS है। चलो फॉर्मूले देखो आपने क्या लिखा है फॉर्मूले में, वी नो दैट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, करेक्ट है। अभी ये सब मुझे LHS में पुट करना है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू डालना है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू डालना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 हो गया कैंसल। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। एंड देखो यही तो प्रूव करना है RHS। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, आपको ये पता चाहिए पहले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये पहले हमें अच्छे से पता रहा तो हम ये LHS में पुट कर सकते हैं। ये 2 कैंसल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, उसका वैल्यू आ रहा है tan स्क्वायर एंड tan स्क्वायर मतलब ये हो गया आपका RHS। सिंपल बहुत है लेकिन फॉर्मूले पता चाहिए। ओके, अभी मुझे यहाँ पे स्पेस मिला है तो मैंने जो प्रीवियस सम लिया वह टाइप का मैं और एक सम देता हूं। इफ sin x इक्वल टू -4/5 पाई लेस दैन x लेस दैन 3π/2, then find number 1 sin of 2x, number 2 cos of 2x, नंबर 3 tan of 2x, ये हमें फाइंड आउट करना है। देन फाइंड sin 2x, cos 2x एंड tan 2x। वी आर गिवन sin x, sin x हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है sin 2x, cos 2x, tan 2x, करेक्ट है। तो चलो ये पहले गिवन नोट डाउन करो। sin x इक्वल टू -4/5 पाई लेस दैन x लेस दैन 3π/2, ये sin x का वैल्यू है। अभी sin x से क्या फाइंड करोगे? टू फाइंड आउट cos x। वेरी गुड। एंड वी नो द रिलेशन बिटवीन द साइन एंड कॉस, स्टडी किया हमने प्रीवियस सम में। सेम वे यूज करो आइडेंटिटी, फाइंड आउट द cos x यूजिंग cos x एंड sin x टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1। अभी आप ट्राई करोगे, आपको आना चाहिए। ओके, चलो राइट द आइडेंटिटी। वी नो द रिलेशन बिटवीन द साइन एंड कॉस। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। बहुत लोग लिखना भूल गए, राइट करके देखो, राइटिंग मस्ट है। अभी रीड करो, राइट करो, उसमें से फॉर्मूले रिकॉल करो।
आपके पास फॉर्मूला बुक है, प्रीवियस फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करो, या आप जो रूम में सोते हो, आपका जो बेडरूम है, आराम से उसके सामने जो जो फॉर्मूले आपने स्टडी किया वो आपके सामने लगा लो। कौन कौन से फॉर्मूले स्टडी किया? हमने स्टडी किया एंगुलर वैल्यू 0 to 360, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले, और भी ये चैप्टर में और भी फॉर्मूले बाकी हैं। ये 1 by 1 ये कलेक्शन आपके परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस मस्ट है। वो जो आपके पास जो छोटा मैंने फॉर्मूला बुक दिया वो देखो, उसमें से बहुत सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से देखना है। ये पूरे 11 12 के फॉर्मूले हैं, बट अभी जितना पार्ट हुआ वो देखो, कौन सा चैप्टर आपका चल रहा है वो चैप्टर के फॉर्मूले देखना है और अच्छे से रिवाइज करना है। बस इतना तो है, ये आपका बेसिक, ये आपका फाउंडेशन है। ये अच्छे से आप करोगे 11th मतलब सब मैथमेटिक्स साइंस का इंट्रोडक्शन है। आगे का जो फ्यूचर बनाना है उसके लिए पहले 11th प्रॉपर चाहिए। 11th अच्छे से आ गया, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट उसके लिए पहले आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, टाइम टेबल बनाओ, प्लानिंग करो, आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलो ये वैल्यू पुट करो, ये आइडेंटिटी में अभी वैल्यू ऑफ sin x पुट करो एंड फाइंड आउट द cos x। राइट इन योर चैट बॉक्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x। cos x का वैल्यू लिखना है। Find out cos x and remember here x lies in the third quadrant। लिमिटेशन दिया है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, पाई से ग्रेटर 3π/2 से लेस, मीन्स लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, राइट है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट के साइन आपको पता है। वेदांत मोरे ने आंसर दिया है सबसे पहले। कमॉन कमॉन, बाकी लोग cos x का वैल्यू आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करना है, ट्रांसफर करना है। cos x का वैल्यू मिलेगा -3/5 पाई लेस देन x लेस देन 3π/2। ये आ गया cos x का वैल्यू। चलो फर्स्ट टारगेट है sin of 2x। वी नो द फॉर्मूला 2 sin x cos x। 2 multiply -4/5 into -3/5। मल्टीप्लीकेशन करो, 12 2 जार 24/25। ये वैल्यू आ गया sin 2x का। सेकंड cos of 2x, राइट द फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, या 2 cos स्क्वायर -1 या 1 - 2 साइन स्क्वायर, कोई भी फॉर्मूला यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos स्क्वायर मतलब -3/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर -4/5 ब्रैकेट स्क्वायर, -3/5 का स्क्वायर 9/25 माइनस 16/25, सब्ट्रैक्शन करो -7/25। ये वैल्यू आ गया cos 2x का। और नेक्स्ट वन tan 2x sin 2x अपॉन cos 2x। फाइनल आंसर आएगा -24/7। tan 2x का वैल्यू आएगा -24/7। चेक करो, ऐसे आपको sin 2x cos 2x एंड tan 2x फाइंड करना था। बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग एंड सिंपल क्वेश्चन था। tan 2x का वैल्यू है -24/7। चलो अगली क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, अगला सम देखते हैं। sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। इक्वल टू 0 ये हमें प्रूव करना है।
हम RHS तो नहीं ले सकते, हमें क्या लेना होगा, LHS, साइन ऑफ 3x प्लस साइन x इंटू साइन x, ऐसे आएगा, प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। अभी आपको सोचना है व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, क्या कर सकते हैं हम, आपका दिमाग यूज करना होता है इसके लिए, बाकी कुछ नहीं है। कुछ लोग गाड़ी स्टैंड पे रख कर ही स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग स्टैंड निकालने के बाद स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग गाड़ी को टर्न लेने के बाद रास्ते पे स्ट्रेट जो रास्ते से जाना है वह रास्ते पे डायरेक्शन करने के बाद स्टार्ट करते हैं। हर आदमी का तरीका अलग है, बट सब लोगों को गाड़ी चला के जाना है, बट स्टार्ट करने का जो पोजीशन है, जो मोमेंटम है वह डिफरेंट है, डिपेंड्स ऑन ब्रेन होता है। कुछ लोग स्टाइल में राउंड मारते हैं उसके बाद, मतलब उनको मजा आता है। कुछ लोग ऐसे कुछ गेम खेलना पसंद नहीं करते, डिपेंड करता है हमारी सोच। यहां पर भी वही है, डिपेंड करेगा आपकी सोच, आप कौन से वे से सोच रहे वह वे यहां पे मैटर करेगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट वन साइन 3x cos 3x का आपके पास फॉर्मूले हैं, आप फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, करेक्ट है, नो डाउट। किसी को लगा नहीं यार मुझे नहीं पुट करना है, वो फॉर्मूला विर्मूला बहुत डिफिकल्ट होता है, ओके कोई इश्यू नहीं है, ये अंदर मल्टीप्लाई करना है वो भी कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूं मैं भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन ऑफ 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, दैट इज द साइन स्क्वायर एक्स, प्लस या हम साइन इंटू साइन भी लिख सकते थे, कोई मैटर नहीं था, प्लस ये यहां पे मल्टीप्लाई कॉस ऑफ 3x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे हो जाएगा। मुझे आंसर तो 0 चाहिए, मतलब ये सब कैंसिल होना चाहिए, तो कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा है, बट मैं अभी भी और भी सिंप्लीफाई करता हूं, मैंने होप्स छोड़ा नहीं है, ट्राई कर रहा हूं मैं। अभी ये टर्म मैं पहले लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं उसका रीजन आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। cos 3x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स, करेक्ट है। दिस टर्म एंड दिस टर्म, इसका वैल्यू 1 नहीं आता है, प्लस होता तो 1 है, बट ये प्लस नहीं है। आई कैन टेक द कॉमन बिटवीन दिस टू माइनस एंड इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे आएगा। चेक करो, माइनस इंटू प्लस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर, करेक्ट है ये। बट अभी ये माइनस कॉमन क्यों लिखा, ये मैंने रीअरेंज क्यों किया, ये ऐसे यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा, बहुत दिमाग में अलग अलग सवाल आपके आएंगे और आना भी चाहिए। काहींना वाटले सरांची तब्येत बरी नसेल म्हणून असं लिहिलं असेल, राईट आहे। काहींना असं वाटेल सरांना गुस्सा असेल म्हणून लिहिलं असेल, असं नाही आहे। ये मैं कन्वर्ट कर रहा हूं फॉर्मूले में। वी नो द फॉर्मूला cos A cos B प्लस sin A sin B। मुझे सिंप्लीफिकेशन चाहिए, आई वॉन्ट 0 मीन्स कैंसल ऑल द टर्म, मीन्स हियर सिंप्लीफिकेशन इज अ मस्ट, दैट्स व्हाई रीअरेंज द टर्म, दिस इज अज्यूमिंग A एंड दिस इज द B, सेम दिस इज A एंड दिस इज द B, मतलब दिस स्टेटमेंट इज द कंपेयर टू cos A cos B plus sin A sin B, cos A cos B plus sin A sin B, this is the formula of cos of A minus B, 3x minus x, A मतलब 3x है, cos of 3x minus x, इसका ये एक्सपांशन है, माइनस cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos of 2x, ये cos 2x का फॉर्मूला है मेरे भाई, ये पता चाहिए, ये ख्याल में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने फॉर्मूला यूज किया, इसकी जगह पे ये आएगा cos 2x का फॉर्मूला, चाहिए तो आप रीजन में लिखो cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x एंड cos ऑफ A माइनस B का एक्सपांशन है cos A cos B। नहीं आ रहा है तो साइड में रीजन में लिख के रखना है, आपकी नोटबुक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है।
तो नोटबुक में क्या लिखना है ये आप खुद सोच लो, खुद डिसाइड करना है। मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया, कुछ लोगों को लग रहा है मैं बाद में भूल जाऊंगा, तो लिखो ना साइड में, कोई मैटर नहीं है। नोटबुक आपके लिए है, अंडरस्टैंड आपको होना चाहिए, कौन क्या कहेगा डजंट मैटर। ओके ये मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में चाहिए था, और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2x, उसके जगह पे मैंने लिखा cos 2x। अब ये एंगल, ये सब्ट्रैक्शन होगा ना, इक्वल टू cos ऑफ 3x माइनस x 2x माइनस cos ऑफ 2x। अरे आ गए ना भाई, ये cos 2x माइनस cos 2x कैंसल, क्या हुआ आंसर 0 0, एंड दिस इज द RHS, हेंस द प्रूफ। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ये मैथमेटिक्स का यूज है, हमें सोचना पड़ रहा है हर स्टेप के लिए। हम सोचते हैं, सोच रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, मतलब आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है। ये इनडायरेक्ट यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, समझ में आना चाहिए हम पढ़ क्यों रहे हैं। मोस्ट ऑफ पीपल को पता ही नहीं रहता हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या यूज है, हमें ये यूज पहले समझ में आना चाहिए। ये हमारे थिंकिंग को डेवलप कर रहा है, थिंकिंग को डेवलप कर रहा है, मतलब आपका फ्यूचर ब्राइट होने की तरफ जा रहा है। हम सोचते हैं ना फ्यूचर ब्राइट चाहिए, बड़ा डॉक्टर बनना है, बड़ा इंजीनियर बनना है, ये व्हाटएवर जो कुछ भी है, बट उसके लिए बड़ा ब्रेन चाहिए। और बड़ा ब्रेन मतलब उसकी पावर बढ़ानी होती है। वो तो ऐसा नहीं है कोई बटन दबाए बड़ा होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई मेडिसिन लिया बड़ा होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। उसके लिए यही मेडिसिन, इसलिए तो एजुकेशन मस्ट है, इसलिए तो हम ये सिस्टम से जा रहे हैं, इसलिए तो मैथमेटिक्स मस्ट है। कुछ लोगों को पता है नहीं मैथ्स का यूज क्या होता है। यूज ऑफ मैथमेटिक्स टू डेवलप द थिंकिंग कैपेसिटी, ये सोचने की कैपेसिटी डेवलप करना, ये मैथमेटिक्स का यूज है। वह जितना आप मैथमेटिक्स यूज करोगे उतना आपकी सोच बढ़िया होगी। और ये पावरफुल मैथमेटिक्स ऑल वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया और चाइना के पास, मतलब आप लोगों को गॉड गिफ्ट है कि आप लोगों को मिला ये चांस। इसलिए आज भी वर्ल्ड में जितने भी रिसर्च होते हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी आते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ पीपल इंडियन और चाइनीज है। डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज, इंडियन थोड़े से लेजी है, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। वैसे वो चाइनीज उतने लेजी नहीं जितने हम लेजी है। आप पढ़ भी रहे तो रिलैक्स पढ़ रहे, मतलब आप लेजी है। आप सोच भी रहे तो टेम्पररी सोच रहे, मतलब आप लेजी है। आप कुछ लोग तो आराम से अभी भी नींद से उठकर बैठे हो गए, कुछ लोगों ने अपने ये मुंह भी नहीं धोया होगा, क्यों? क्योंकि आप लेजी है। ये इंडियन और चाइनीज का डिफरेंस है। इसलिए तो हम आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना एम है ना हमारे पास सोचने का है। बट आप सोचो, आपका ये जनरेशन कुछ कर सकता है। इसलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि 2020 के बाद इंडिया सबसे रिचेस्ट होगा। लेकिन हम लोग थोड़े गधे थे, हम लोगों ने कुछ ज़्यादा किया नहीं। आपके जनरेशन से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप कुछ करोगे। ओके, तो ऐसे आपको सोचना है, अच्छे से करना है। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? मैंने मल्टीप्लाई किया, कुछ लोगों ने फॉर्मूला पुट किया होगा, कोई मैटर नहीं है। सिंप्लीफाई करो, 100% जीरो मिलेगा। बट प्रॉपर वे से सॉल्व करो कोई भी मेथड। मैंने पहले कहा आप वे अलग अलग है मैथमेटिक्स में, अलग अलग वे से सोचना, यही तो डेवलपमेंट है। इसे तो डेवलपमेंट कहते हैं, इसे तो सक्सेस कहते हैं। आपको सक्सेस लाना है तो सोचो, आप सोचो, फास्ट सोचो। आपके अंदर कंपटीशन लगना चाहिए, सबसे पहले मेरा आंसर आएगा। ये कंपटीशन मस्ट है, तो उसे हम एंजॉय बोलते हैं। वो एंजॉय सबको करना है। cos x माइनस कॉस वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। इससे मुझे आंसर चाहिए, ये तो चाहिए अपॉन 2 है, मतलब एंगल में कुछ तो गड़बड़ करना है। तो करते हम, देखते क्या पॉसिबल है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी जाने दो, उससे भी ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab का, बट उसका भी कोई नहीं, चलो जाने दो। हम बाय रूल एक्सपांड ही करते हैं। मुझे कुछ लॉजिक नहीं आया समझ में, तो मैंने सोच लिया डायरेक्ट एक्सपांड कर दे। पहले मैं LHS लिख रहा हूं, cos x माइनस कॉस वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई ब्रैकेट स्क्वायर। ये मैंने LHS लिख लिया। मुझे सिंपल क्या लगा
ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर हमने 5th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है और आप टैलेंटेड है। वी नो द फॉर्मूला ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। चलो लिखो क्या एक्सपांशन लिखते हैं आप, बट किसी का देखकर कॉपी मत करो। ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन 5th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हैं, 5th 6 7 8 9 10, मतलब 6 साल अपने ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है। वही फॉर्मूले से मुझे लिखना है यहां पर ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर वाई। सेम वे ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई। I can use the formula a minus b whole square a square minus 2ab plus b square, ये होता है। ये मैंने एक्सपांड किया बाय यूजिंग दिस बेसिक अल्जेब्रिक फॉर्मूला। आगे क्या पॉसिबल है फिर सोचना है। ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, उसका क्या वैल्यू होता है पता है 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, उसका वैल्यू होता है 1। ये मैंने डाल दिया। रिमेनिंग टर्म आई कैन टेक द कॉमन -2, मैं कॉमन निकाल रहा हूं कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। लिख सकते हैं हम, कोई मैटर नहीं है, सही लिखा है मैंने। ये टर्म में से ये टर्म एंड दिस टर्म आई कैन टेक द कॉमन -2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉमन निकाला इसलिए प्लस साइन एक्स साइन वाई। राइट है सर, कोई इश्यू नहीं है। अब ये 1 + 1 हो जाता है 2 -2 एज इट इज। ये मल्टीप्लाई, ये 2 कैंसिल नहीं होगा, 2 मल्टीप्लाई टू ब्रैकेट हियर, दैट्स व्हाई दिस एज इट इज। बट अभी ये ब्रैकेट की जगह पे हम कुछ लिख सकते हैं cos x cos y प्लस sin x sin y। ये आया मुझे ब्रैकेट में cos x cos y प्लस sin x sin y इक्वल टू व्हाट, उसकी जगह पे, क्योंकि ये तो मेरा टारगेट नहीं है, मुझे और ये रिड्यूस करना है, मतलब और सोचना है, मुझे सोचना है, मतलब इसकी जगह पे कुछ तो करना है। करना क्या है, उसकी जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, चलो कमान कमान, इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं हम cos x cos y प्लस sin x sin y इक्वल टू व्हाट। चलो मैं देख रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी डालोगे। वेरी गुड, वेदांत मोरे ने डाल दिया सबसे पहले, मतलब ये उनका लॉजिक हाई लेवल पे चल रहा है। ये फॉर्मूला है cos a माइनस बी का, cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, cos x cos y प्लस sin x sin y इक्वल टू cos ऑफ x माइनस वाई। ऐसे होता है भाई, ये cos x माइनस वाई का एक्सपांशन है। आफ्टर दैट दिस टर्म एंड दिस टर्म टेक द कॉमन 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस cos ऑफ x माइनस वाई। आई कैन टेक द कॉमन 2, ये 2 कॉमन निकलेगा, 2 यहाँ पे बचेगा 1, ये 1 बचेगा, 1 इंटू दिस टर्म मतलब टर्म ही रहेगा। यहां तक आया, लेकिन अभी भी मेरा टारगेट नहीं है, बट अभी मुझे ये स्क्वायर लाना है, तो ये कुछ तो फॉर्मूला यूज करना है। वी नो दैट 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा -2 कॉमन निकाला मैंने, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 डाला है, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y ये भी 1 डाला है, ये -2 cos x cos y -2 sin x sin y -2 कॉमन, ये एक्सपांशन है cos x माइनस y, ये सब लोगों को समझ में आया, 2 कॉमन निकाला, ये 1 माइनस, मैं इसे अज्यूम कर रहा हूं थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, बोलो क्या फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला होगा। चेक करो राइट है का, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2।
1 माइनस कॉस थीटा इज द 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अभी थीटा की जगह पे ये टर्म है 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, उसकी जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब इक्वल टू ये 2 एज इट इज है। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा मतलब x माइनस वाई डिवाइड बाय 2। ये क्वेश्चन में मिस्टेक आया है, ये कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, उसकी जगह पे चाहिए साइन स्क्वायर। ये 2 2 जार क्या मिला मुझे 4 साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। ये इससे आंसर आ गया। RHS मिस्टेक था, ये आंसर होना चाहिए 4 साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। थीटा मतलब ये थीटा बाय 2 x माइनस वाई बाय 2, दिस इज द RHS। ये हो गया प्रूव। इससे हमें ये प्रूव करना है 2 एज इट इज मल्टीपल 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर नहीं आता, कब आता जब ये प्लस होता। 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, बट अवेलेबल माइनस है, माइनस रहा तो उसका वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ऐसे आएगा, और ये हो गया प्रूव। बट RHS टारगेट में जो RHS है वह ये टाइप में चाहिए, ये कॉस नहीं चाहिए। क्लियर हुआ ये? आपके टेक्स्ट बुक में भी शायद ये मिस्टेक हुआ होगा, तो आप एक बार जब चेक करोगे नोटबुक या नोट्स दोनों एट ए टाइम स्टडी करोगे तो ये मिस्टेक आपको दिखाई देगा। अरे तो ये प्रीवियस और इसमें क्या फर्क है? अभी तो ये प्रूव हुआ हमारा 2 4 साइन स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर, तो डिफरेंस कहाँ पे था? डिफरेंस एक तो ये चाहिए 4 साइन स्क्वायर, बट सॉरी एक्स प्लस वाई बाय 2 ना, ये मेरा x माइनस वाई बाय 2 आया। क्वेश्चन गलत कहा था? गलत यहाँ पर था कि ये माइनस की जगह पे प्लस। चलो मैं करता हूँ, फिर से हम ये देखते हैं, मतलब आपका जो यहाँ पे मिस्टेक था इसलिए ये प्लस आया, वो माइनस है। हम यहाँ पर देखते हैं, ये पहले मैं क्लीन करता हूँ, ये एज इट इज मैं सॉल्व करता हूँ, बट क्वेश्चन का LHS ही चेंज करना पड़ेगा हमें, LHS चेंज करना है। क्या LHS में अभी मैं ये प्लस लेता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस, तो ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आए तो मिडल साइन प्लस होगा, प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे आएगा। अभी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1। अभी ये टर्म में से कॉमन निकलेगा प्लस 2 कॉमन, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, करेक्ट है। कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन, कुछ तो गड़बड़ है। ये कॉस ए माइनस बी का ही फॉर्मूला आता है, ये प्लस में लिया तो ये प्लस आएगा, ठीक है। देखते हैं ये प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का एक्सपांशन नो डाउट। ये 1 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे हम हाफ एंगल यूज कर रहे हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये उसका फॉर्मूला आएगा। बेसिक फॉर्मूले अच्छे से पता चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब ये कॉस स्क्वायर चाहिए, थीटा की वैल्यू x माइनस वाई है, तो ये यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर आएगा। ओके, ऐसे आ जाएगा ये। अभी ये जो मैंने सॉल्व किया वह 100% करेक्ट है। 2 कॉस स्क्वायर, ये 4 2 2 जार 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 x माइनस वाई बाय 2 ऐसे ही आएगा। ये प्लस में लिया तो ये माइनस आता है आंसर, मतलब यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं। ये चाहिए मुझे माइनस, इसकी जगह पे मुझे माइनस करना पड़ेगा। ये करता हूँ मैं माइनस, पेन लेता हूँ यहाँ पर, ये माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2, ये मैंने प्लस लिया तो मुझे ये टाइप में आएगा, करेक्ट है।
तो अभी इसके रिलेटेड सेम क्वेश्चन है, हम अगला सम भी देखते हैं, मतलब और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये साइन में कुछ गड़बड़ था तो इसलिए ये हमें मिल गया, हमने वो ट्राई किया, इसे आ गया। अब ये माइनस साइन है, टारगेट भी मेरा माइनस है, तो ये माइनस में तो माइनस ही आएगा जो हमने प्रीवियस में देखा था। देखो ये प्रीवियस में साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 आया था, हमें प्रीवियस स्लाइड देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्लीन किया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 आया था जब वो माइनस था। तो चलो अभी माइनस का साइन यूज करके सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट राइट द एलएचएस, एलएचएस लिखना है हमें, एलएचएस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई ब्रैकेट स्क्वायर, ये एलएचएस है। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, दोनों ब्रैकेट में यूज द फॉर्मूला। ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम ईयर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई, ऐसे आएगा। नेक्स्ट वन, और आगे सिंप्लीफिकेशन करना है, राइट है। अभी और मैं पेन यूज कर रहा हूं। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, उसका वैल्यू होता है 1। कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, उसका भी वैल्यू होता है 1। अब ये रिमेनिंग टर्म में से -2 कॉमन, इन ब्रैकेट कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये टाइप में आएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन, अब ये 1 + 1 क्या होता है, ये 2 होगा, ये -2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी मतलब x माइनस वाई, इसका फॉर्मूला है। ओके, तो चलो मैं रीजन में लिखता हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज किया। पहले मैंने आइडेंटिटी यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी से 1 1 लिखा। नेक्स्ट वन, कॉस ए माइनस बी का एक्सपांशन है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, उसकी जगह पे कॉस ए माइनस बी मतलब x माइनस वाई। अभी बिटवीन दीज टू टर्म कॉमन 2 निकलेगा, 1 माइनस कॉस ऑफ x माइनस वाई, इससे आएगा। मीन्स यार 1 माइनस कॉस थीटा होगा। वी नो द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, ये अज्यूम करो थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब x माइनस वाई अपॉन 2। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है, रीजन लिखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, ऐसे आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 2 जार क्या हो गया, 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, एंड देखो दिस इज द RHS, ये RHS होना चाहिए। इसे हमें सॉल्व करना है, 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ये इससे आ गया। ये स्टेटमेंट करेक्ट था, प्रॉपर एक्सपांड किया, सिंप्लीफाई किया, फॉर्मूले यूज किया, एंड टू फाइंड आउट द आंसर, टू फाइंड आउट द RHS एंड हेंस द प्रूफ। ऐसे सॉल्व करना होता है, बट उसके लिए हमें सब फॉर्मूले पता चाहिए, कब कौन सा यूज करना है, उसके लिए थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ऑटोमेटिकली आएगा, कोई मैटर नहीं है। ओके, तो चलो ये हो गया हमारा 4th एग्जाम्पल। बढ़िया समय, एंजॉयबल समय। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 5th वन, tan x प्लस cot x इक्वल टू प्रूव दैट 2 cosec 2x। सिंपली देखा जाए तो LHS में सेकेंडरी फंक्शन है, RHS ऑल्सो सेकेंडरी। LHS स्टैंडर्ड एंगल है, बट RHS मल्टीपल एंगल है, मल्टीपल एंगल आया। डायरेक्टली तो एडिशन का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बेटर मेथड होता है कन्वर्ट द प्राइमरी। LHS tan x प्लस cot x, ये LHS है।
अभी ये मुझे प्राइमरी में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करो प्राइमरी में। tan मतलब होता है sin x अपॉन cos x, cot मीन्स होता है cos x अपॉन sin x, ऐसे होता है। ये कन्वर्ट किया मैंने प्राइमरी में। आफ्टर दैट ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस इंटू साइन या साइन इंटू कॉस। देखो राइट है का, डिनोमिनेटर डिफरेंट है इसलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। अभी ये न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, उसका वैल्यू आएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी 1 कहाँ से आया, जब तक मुझे पता नहीं तब तक मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, उसका वैल्यू मैंने 1 डाला। बट मेरा टारगेट 2 कोसेक 2x है। प्राइमरी में जब आप ओरली करोगे तो कोसेक 2x मतलब 1 अपॉन साइन 2x, ये 1 अपॉन तो आ गया यार। साइन 2x चाहिए डिनोमिनेटर में मुझे, ऐसा मुझे क्लियर हुआ। साइन 2x चाहिए तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या है ये मुझे सोचना है। एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ साइन 2x इज 2 sin x cos x, ये मेरा फॉर्मूला है। 2 sin x cos x चाहिए तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, बट 2 चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, राइट है। मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, मैंने 2 लिख लिया, बट ये बैलेंस नहीं हुआ। मुझे लगा ये शॉर्ट शर्ट है, शॉर्ट है, बट जब मैं धूप में जाता हूं तो ये यहाँ पे स्किन का कलर चेंज होता है। मुझे लगा नहीं यार, ये साइड का मैं पूरा करता हूं यहाँ तक और ये ऐसे रखता हूं, क्या अच्छा दिखेगा? नहीं दिखेगा। आप लोग हंसोगे ना, एक साइड ऐसे फुल है और एक साइड ऐसे शॉर्ट है। मुझे ये यहां तक चाहिए तो मुझे दोनों साइड एक्सटेंड करना होगा, तो ही वो बैलेंस होगा, तो ही करेक्ट रहेगा, तो ही अच्छा दिखने वाला है। मतलब मुझे बैलेंस करना आना चाहिए। इफ वी रिक्वायर या इफ वी वांट हियर टू, दैट टाइम हियर आल्सो मल्टीप्लाई टू दैट टाइम द बैलेंस। ये दोनों जगह पे मल्टीप्लाई किया तो ही बैलेंस होगा। मतलब ये 2 into 1 is 2 डिवाइडेड बाय 2 sin x cos x, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ 2x, ये साइन 2x का फॉर्मूला है, करेक्ट है। एंड 1 अपॉन साइन 2x दैट इज द cos 2x, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 1 अपॉन साइन ऑफ 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन 2x इज व्हाट, कोसेक ऑफ 2x, इसे होता है। एंड दिस इज द RHS, ये होगा RHS। 1 अपॉन साइन मतलब कोसेक, एंड ये कोसेक 2x आएगा क्योंकि एंगल 2x है। 1 अपॉन साइन 2x मतलब उसकी जगह पे कोसेक 2x मल्टीप्लाई 2 एज इट इज, एंड दिस इज द RHS एंड द प्रूव, इसे प्रूव हो गया। चलो नेक्स्ट वन, cos x plus sin x upon cos x minus sin x minus cos x minus sin x upon cos x plus sin x equal to prove that 2 times tan of 2x, ये हमें प्रूव करना है। अभी प्रूव करना है मतलब LHS से RHS या RHS से LHS, बट RHS तो मल्टीपल एंगल, उसका फॉर्मूला इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो बेटर वे हम LHS सॉल्व करते हैं और जनरली हम LHS से RHS दिखाते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं LHS। जब तक मैं LHS लिख रहा हूं तब तक क्या ऑपरेशन करना है ये मुझे चैट बॉक्स में आप डालोगे। जिसका पहला आएगा उसको मैं कैडबरी सेंड कर दूंगा। cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स, माइनस हियर cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय हियर cos x प्लस साइन एक्स। ये मैंने नोट किया LHS। व्हाट इज द फर्स्ट ऑपरेशन, उसके लिए मैं कैडबरी भेज देता हूं। चलो बोलो जल्दी, क्या करोगे, क्या करना होगा ये मैंने LHS लिया। व्हाट इज द फर्स्ट ऑपरेशन हियर, टेल मी द ऑपरेशन, जल्दी जल्दी लिखना है।
1 मिनट के आया तो कैडबरी मिलेगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि कैडबरी की कुछ वैल्यू होती है, सबको थोड़ी मिलने वाला है, जो पहला बताएगा उसको मिलने वाला है। अब वेदांत मोरे ने ही बताया, वेदांत मोरे को कैडबरी देना ही है। वेदांत, कांग्रेस वेदांत, आपको कैडबरी मिल जाएगा। यस, तो यहां पे उन्होंने लिखा है, पहले सबसे पहले उन्होंने बताया सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद कुलकर्णी ने भी बताया, कुलकर्णी आपने पहले नहीं बताया, इसलिए प्रेफरेंस पहले वेदांत मोरे को जा रहा है, उनको कैडबरी हम भेज देंगे। ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यार डिनोमिनेटर इज द डिफरेंट, मतलब ये जो टर्म है और ये टर्म है उसमें साइन डिफरेंट है ना, ये माइनस ये प्लस है, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सेम नहीं रहा तो क्या करना होता है, ये हमने 4th 5th स्टैंडर्ड में ही देखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। दिस टर्म मल्टीप्लाई टू दिस cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स, ये होता है cos x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, मिडल साइन है माइनस। दिस टर्म मल्टीप्लाई दिस मीन्स ये माइनस रहा तो आगे ब्रैकेट मस्ट होता है, हियर आल्सो ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइड ये दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट cos x माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस साइन एक्स, ऐसे आएगा। दिस टर्म इंटू दिस टर्म का स्क्वायर, दिस टर्म इंटू दिस व टर्म का स्क्वायर, मिडल साइन माइनस एज इट इज, दिस ब्रैकेट इंटू दिस ये एज इट इज, ये दोनों डिफरेंट ब्रैकेट है। अभी न्यूमरेटर हम सॉल्व करते हैं, एक्सपांड दिस ब्रैकेट स्क्वायर, इसे एक्सपांड करना है, एक्सपांशन आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab cos x इंटू साइन एक्स, मतलब साइन एक्स इंटू cos x, मीनिंग तो वही है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, आगे माइनस है इसलिए ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी आर द फैक्टर्स, या अलग भी क्या सोच सकते थे आप, ये अलग नहीं, एक्सपांड करना, यही सिंप्लीफिकेशन, ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करना। फिर किसी के दिमाग में आएगा दिस टर्म अपॉन दिस, ये किया तो फिर से वही मिल जाएगा, कुछ चेंज नहीं, इसलिए मैंने एक्सपांड किया। अभी ये अलग है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके फैक्टर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट है। ये मैंने कौन कौन से फॉर्मूले यूज किया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लिखना जरूरी नहीं है, ऑलरेडी अपने 5th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, जो प्रीवियस ईयर का होता है वह रीजन में लिखना जरूरी नहीं होता है, बट तो भी आप लोग भूल गए ना, आप लोगों ने 10th में एंजॉय किया, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं कौन कौन से फॉर्मूले यूज किया। हियर ए प्लस बी होल स्क्वायर, हियर ए माइनस बी होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आगे देखो, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा। अभी ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का फॉर्मूला है, साइन ऑफ 2x, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन इन ब्रैकेट 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, मिडल साइन माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला है साइन ऑफ 2x डिवाइड में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका है, कॉस ऑफ 2x। रीजन में लिखो, अभी रीजन मस्ट है, कौन कौन से फॉर्मूले आपने यूज किया वो रीजन में लिखना मस्ट है। यार यूज कॉस 2x मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये यूज किया। साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये आपने यूज किया। ये दो फॉर्मूले आपने यहाँ पे यूज किया है, साइन 2x डाला, यहाँ पर साइन 2x, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का भी वैल्यू डाला,
ये यहां पर भी लिखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये भी आपने यूज किया है। ये रीजन में लिखो, ये रीजन मस्ट है, थोड़ा सा एडजस्ट करो, स्पेस कम रहा है मेरे पास, इक्वल टू ये 1 प्लस साइन ऑफ 2x ब्रैकेट ओपन -1 माइनस इंटू माइनस प्लस साइन 2x डिवाइड बाय कॉस ऑफ 2x, ये प्लस -1 कैंसल, साइन 2x प्लस साइन 2x 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x अपॉन कॉस ऑफ 2x, इससे आ जाएगा। करेक्ट है। अभी उसके आगे हमें स्टेप लिखना है, टारगेट देख के हमें स्टेप लिखना है। मेरा टारगेट 2 टाइम्स मतलब ये 2 एज इट इज है, ये साइन 2x अपॉन कॉस 2x, ये क्या होता है tan ऑफ 2x। एंड देखो देखो भाई, देखो 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 हमें मिल गया RHS 2 tan ऑफ 2x। बहुत सिंपल था, डिनोमिनेटर डिफरेंट था, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस मल्टीप्लायर स्क्वायर दिस मल्टीप्लायर ब्रैकेट स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट, एक्सपांड a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो एक्सपांड बाय यूजिंग द a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। डिनोमिनेटर a माइनस बी, a प्लस बी आर द फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे आएगा। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1, 2 sin x cos x इज sin 2x, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, इसका फॉर्मूला sin 2x, ये डिनोमिनेटर का फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला है। रीजन में लिखो कौन कौन से फॉर्मूले आपने यूज किया, ये आपने यूज किया यहाँ पर, करेक्ट है। नेक्स्ट वन, ये 1 प्लस साइन 2x ब्रैकेट ओपन -1 माइनस इंटू माइनस प्लस अपॉन cos 2x, ये प्लस -1 कैंसल, sin 2x प्लस sin 2x 2 टाइम्स sin 2x अपॉन cos 2x एज इट इज है, sin 2x अपॉन cos 2x, ये क्या होता है, दैट इज द tan ऑफ 2x। ये हो गया आपका आंसर, 2 टाइम्स tan ऑफ 2x, दैट इज द RHS। माइंड ब्लोइंग सम था और आप लोगों ने बहुत बढ़िया कोऑपरेट किया, इसलिए हमें आंसर मिला। अभी आगे भी हमें सॉल्व करना है, बट ये आप लोग नहीं आ सकता, ये मैं कल सॉल्व करके देता हूं, बट आपके लिए मैं कुछ होमवर्क देता हूं। प्रूव दैट रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2x इक्वल टू tan x, ये प्रूव करना है। सेकंड नंबर, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अभी इसमें थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा वक्त लगेगा, मैं उसका क्लू बता दूंगा, फ्रेश मूड में हम वो देखते हैं। पहले ये आपको आज का होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करना है। वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू cot x by 2, sin x upon 1 minus cos x, here also answer is cot x by 2। आंसर दोनों का सेम है, क्वेश्चन अलग अलग है, राइट है। ये मल्टीपल एंगल में, ये हाफ एंगल में आ रहा है। प्रॉपर वे से 1 2 3 ये आपको आज सॉल्व करना है, ये आपका आज का होमवर्क है। और एक सम दे तो और थोड़ा एंजॉय करो। फोर्थ एग्जाम्पल दे रहा हूं, इफ cos x
इक्वल टू -3/5, π/2 लेस देन x लेस देन पाई. Then find sin 2x cos of 2x, थर्ड वन है tan of 2x. ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आप फाइंड करोगे. गिवन है cos x -3/5, ये उसका लिमिटेशन है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x, cos 2x एंड tan of 2x. इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है. ये 4 एग्जाम्पल आपको आज का होमवर्क है. ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करना है. नोटबुक में जो पार्ट हो रहा है वह लिखना ही है. कल हम फ्रेश मूड में ये 7 नंबर का सम देखते हैं. ओके, आज के दिन हम यहाँ पर ये रुकते हैं. थैंक यू.